कभी कभी हम इंसान ही अपने घर को तोड़ने लगते हैं। चंद नोटों की गड्डियों के लिए अपने देश, अपने लोगों और अपनी पहचान को भूल जाते हैं। हमें लगता है पैसा सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है कि जिस घर की नींव टूट जाए उसे करोड़ों रुपए भी नहीं बचा सकते। कुछ रेयर क्लिप्स, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इनके पीछे की बात समझने के लिए है, क्योंकि कभी कभी सच्चाई हेडलाइंस में नहीं, छोटे छोटे क्लिप्स में छुपी होती है। दुनिया क्या बोलेगी? अक्टूबर में जो आया थी। Narendra Modi doesn't tend to be very media friendly. You follow what I say? A little bit, yes. So for him to agree to do a sit-down interview with us felt like a bit of a scoop. He struck me as a very charismatic, very powerful, quite menacing figure. So you're now coming up to elections. This seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to correct your information first. The state is very, very peaceful. So the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel that the people who murdered their relatives have not been brought to justice, what would you say to them? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. Some people have been accusing your government of not doing enough to stop this, of not protecting Muslims even now. These are also false propaganda made by our opponents, and you are also a captive of this false propaganda. Can you explain more? Who is perpetuating this false propaganda? That the information I'm reporting is taken from what I have seen with my own eyes, both at the times of the riots and now. Those who are our opponents. And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. I'm very, very clear in my mind. If they have done, they have done wrong. Some would say it is a human right. There is a general international Please interest. don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. When you look back over the last month, you've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes. One area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. We don't need a journalist from Norway to tell us about our press freedom in India. We are journalists from India, and we have been living this reality for years now. And we are telling you there is absolutely no press freedom in India. इसमें तो कोई doubt ही नहीं है. इसमें sugar coat क्या करना? No MLA or MP or any minister or anybody from the government takes any kind of tough questions. Accountability बिल्कुल zero है until and unless ये खुद से script नहीं करके दे देते हैं interview friendly studios के अंदर में. कोई accountability नहीं है, कोई सवाल नहीं लिए जाते हैं. If you dare to ask any tough questions, तो ये अपने IT सेल के गुंडे भिजवा देंगे और आप या तो आप पे FIR लग जाएगी या आपका ट्वीट स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा. तो इतना प्रेशर डाल दिया जाएगा कि आप खुद ही हाथ जोड़ लेंगे कि भाई हमें जर्नलिज्म ही नहीं करना है. और फिर आप बोल रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम है. अब मुझे पता है कि अब लोग बोलेंगे कि अरे ये वीडियो तो तुम बना पा रही हो ना, तुम मणिपुर से रिपोर्टिंग तो कर पा रही हो ना, किसी ने मार तो नहीं डाला तुमको. सही बात है, जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं वही होने वाला है. जर्नलिस्ट को मार ही डाला जाएगा और तब भी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे. और बहुत फनी बात है कि जो रिपोर्टिंग मैं मणिपुर से कर रही हूँ, जो मैं ट्विटर पे डाल रही हूँ, कायदे से आइडियली आई शुड बी डूइंग इट फॉर एन इंडियन पब्लिकेशन और फॉर इंडियन न्यूज रूम बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया. पर क्या कोई स्पेस बची है? कोई स्पेस बची ही नहीं है, कहीं कोई स्पेस नहीं बची है. रादर देन पुटिंग प्रेशर ऑन न्यूज रूम्स, दे सिंपली बॉट द न्यूज रूम्स, दे क्रश्ड ऑल काइंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूज रूम्स. और जो क्वेश्चनिंग जर्नलिस्ट थे उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया. इसलिए आप देखेंगे कि इतने सारे जो बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, या तो वो यूट्यूब पे बैठे हैं, या तो वो लोग ट्विटर पे खबर डाल देते हैं, या वो लोग किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं. नॉट बिकॉज वी वांट टू, इट्स बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस लेफ्ट इन इंडियन द मीडिया स्पेस ऑफ पब्लिकेशंस टू रिपोर्ट.
लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। लग रहा है ना? लग रहा है ना? राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को हटाना ही होगा। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश बीवाल, विधानसभा जमा रामगढ़ आप सभी से अपील करता हूं कि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल मीणा को अपना मत इस समर्थन देकर विजय बनाएं। कल दिनांक 25 नवंबर बैलेट नंबर 2 पर अपना अमूल्य वोट देकर उनको विजय बनाएं। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। और इसलिए मैं मानता हूं आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे भाई बताइए, छोटे लोग जेलने जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए? पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग। ये पहले तो मैं मोदी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस आदमी के खोपड़े में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नफरत। इसके खोपड़े में कुछ नहीं है, नथिंग इन द मैन। और ये कारण क्या है? ये बड़ी कम उम्र में, शायद 8 साल की उम्र से इसने एक संगठन ज्वाइन किया जिसका नाम है आरएसएस। और मैं आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अंग्रेजों ने बनाई थी संस्था 1925 में, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हिंदू पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने, व्हेन आई से मुसलमान डज नॉट मीन इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो काटो जला दो। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया था। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया था। जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए तो, कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया। तो नितिन गडकरी जी है, नितिन गडकरी मेरी एक लड़की थी मेरे साथ एक अटैच, ये उसको बुलाते थे अपने पास। आप तो सारी बातें जानते हो। ये कभी जिंदगी में मेरे काम को बन। Hi, very nice to meet you. Megan Kelly. I saw your tweet Oh, yes? with umbrella. You're on Twitter? Are you on Twitter? Yes. ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा? पता चलेगा समय के साथ। कुछ नहीं होगा, डाल दो का नहीं है, डाल दो मीडिया में। कहाँ दिक्कत है यार? ये कहा हमने, सुनो, कोई गलत तो कहा नहीं।
आप हाथ नहीं उठा सकते। क्यों भड़की है माँ? क्रिश्चियनों जैसे रहना। इस लड़की को लेकर क्या करवाने लेके आती इस लड़की को? क्या करवाने लेके आती इस लड़की को यहाँ? मुसलमानों के बीच में धंधे में ढकेलेंगी इस लड़की को। आप भी शांत रहो। कितनी सी लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए? अभी प्लांट एक्स्ट्रा बन रहे काम आप है ही नहीं। अभी तो इतना एथेनॉल हो गया है कि ये सब घाटे में तो इसका हमको घाटा कम करना है। टारगेट तो 11 लाख टन शायद था, 16 लाख बस। ये देखो हमने जो पीसी दे रखी है उसमें केवल 27% का ही यूटिलाइजेशन, 673 का तो है ही नहीं यूटिलाइजेशन। पेट्रोलियम मंत्री ने खुद नहीं माना। हाँ, पार्लियामेंट में बोलो ना, पुलिस साहब ने स्टेटमेंट दिया है 3 दिन पहले कि वी हैव अचीव्ड द टारगेट इन द सब एक्स्ट्रा बियॉन्ड जा चुके हैं। फील्ड का क्वेश्चन था। हाँ शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। 30% जागा तरी मेहता साहेबांच्या मालकीची 30%. तुम्ही 10% 10% मला द्यायला तयार आहे. 10% म्हणजे 9.5% तरी आहे. अरे आपण चकलच करत रहोय, काही रेकॉर्ड करतील. अरे आपण चकलच करत रहोय, काही रेकॉर्ड करतील. मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। शक्ल वही जात वोट मिलने पर ये खास जुटाया पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो वोटों की सरकार है ना, मुझसे बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना। कितने बेकार आपके मदद से जो बोल रहे हैं आप होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो। रोल पेपर चिकी ब्लंट सांजा ब्रो, सांजा ब्रो, ब्लंट सांजा ब्रो। होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा। होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो। रोल पेपर चिकी ब्लंट सांजा ब्रो, सांजा ब्रो, ब्लंट सांजा ब्रो। होडी मोक चली लेके आजा गांजा ब्रो। अभी तो आया हूँ पहले दिन, आज थोड़ा जान लूँ कैसे काम चलता है विभाग, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। He sent a song for the broken hearted. No silent prayer for the faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. हॉकी और खत्तर में भैया गजब कनेक्शन होता है। बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। लोड ले तो हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी
गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। अगर इस देश में तुम्हारे माँ बाप ने जन्म लिया है, अगर तुम भी इसी मिट्टी में पैदा हुए हो, तो याद रखो तुम्हारी पहचान भी इसी देश से है।